مسائل سلوات پڑھیے آ جائیے آ جائیے خطیب اعظم بھائی مولانا شاہد صاحب سلوات پڑھ دیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اللهم لا نعول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر قابل ولا ذلك اللهم الإصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشاهد وبايعات ودابرة علاقة اللهم عنهم جميعا قال أمير المؤمنين عليه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه صلوات پڑھ دے محمد حضرات ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم معین حیدر ابن مجیب حیدر اور تمام مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھ گئی ہے منہ پہ ماسک لگا ابھی کان پہ نہیں لگا پڑھیے سلوات پڑھیے پہچان لیا تو انسان جو ہے پہلے اپنے نفس کو پھر جو ہے وہ رب کو پہچان لیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب معرفت ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر سوال کا بھی طریقہ آئے گا پھر جو ہے خوف زدہ بھی ہوگا دیکھیں خوف وہ والا خوف نہیں ایک جو خوف ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نہ ڈرتا ہے گھبراتا ہے وہ خوف نہیں یعنی جو ہے محبت والا خوف ہوتا ہے مثال دیتے بچوں کے لیے کہ اب دیکھیں فون کیا کرتے ہیں ہم آپ فون کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ فون نہیں اٹھایا کیوں اس لیے کہ فون سائلنٹ پہ تھا کیوں تھا اس لیے کہ بی بی سو رہی تھی کہیں جگ نہ جائے یہ محبت لیکن کچھ لوگ کہہ دیں گے ڈر کے مارے خاموش کے مثال بدلیے مثلاً جو ہے موبائل سائلنٹ پہ فون کر رہے نہیں اٹھا کیوں کہا کہ بچہ سو رہا تھا اس لیے سائلنٹ کر دیا تھا دروازہ کھولا بہت آہستہ کھولا بند کیا بہت آہستہ کیوں کیا خوف ہے کہا کہ خوف یہ ہے کہ بچہ کہیں اٹھ نہ جائے اس لیے جو ہے موبائل جو ہے ہم نے سائلنٹ پہ کیا تھا تو یہ خوف کیسا ہے تو کہا کہ یہ خوف جو ہے محبت والا خوف ہے کیا بات ہے واہ پڑھیے سوال یہ تمام چیزیں جو ہے نا جو خوف مطلب معرفت ہوگی تبھی معرفت ہے تبھی تو انسان بچے گا معرفت ہے یعنی معلوم ہے اسے یہ جو وبا ہے یہ جو بیماری ہے نماز نہیں لگائیں گے تو بیماری پھیل جائے گی ہم بیمار ہو جائیں گے یا مثلا جو ہے ہوٹل کا کھانا کھائیں گے تو ہم جو ہے بیمار ہو جائیں گے باہر کا کھانا کھائیں گے ہم بیمار ہو جائیں گے یہ پانی پئیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے تو انسان کیا کرتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے بچتا ہے کیوں اس لیے اسے معرفت ہے معلوم ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کو استعمال کرے گا سڑا کھانا استعمال کرے گا تو پھر جو ہے بیمار ہو جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان جانتا ہے تب جو ہے وہ اس چیز سے بچتا ہے اب انسان جو ہے شکایت کرتا ہے کہ ہم جو ہے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں لیکن جو ہے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا دیکھیے اول تو یہ کہ ہمیں جو ہے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا
और दूसरी चीज ये है कि न देने में परवरदिगार की मसलहत है, मसलहत है। अब जाहिर सी बात है कि आप देखें कि अगर इंसान सोचे कि तमाम चीजें जो है परवरदिगार ने बगैर मांगे दिया, ये बगैर मांगे परवरदिगार ने दिया, ये पांव जो बदन का बोझ उठाए हुए है बगैर मांगे दिया, ये हाथ में ताकत कुव्वत जो है परवरदिगार ने बगैर मांगे दिया, यानी तमाम चीजों को परवरदिगार ने बगैर मांगे दिया है ना। अब इंसान जो है ये शिकवा करता हम मांग रहे हैं लेकिन जो है परवरदिगार नहीं दे रहा, इसमें मसलहत होती है। मसलन जो है इंसान जो है शुगर का मरीज है, दिल कर रहा है रसगुल्ला खाए, आम बात पढ़ते हैं, किसी को लीजिएगा नहीं दिल तो सलवार पढ़िए, मांग रहा है कि हमें रसगुल्ला मीठा चाहिए लेकिन बीबी नहीं दे रही है, क्यों? इसी में मसलहत है, न देने में मसलहत है। और मसलन मिसाल के तौर पे बीबी मरीज है, वो मांग रही है मीठा और शौहर नहीं दे रहा है, इसी में मसलहत है। डॉक्टर मसलन जो है कहते कि पानी न दिया जाए ठंडा, इसी में मसलहत है। तो परवरदिगार जो है अगर कोई चीज न दे तो न देने में मसलहत है। परवरदिगार जो है वो आलिम है, माशाल्लाह, जाहिल तो है नहीं, वो जो है आदिल है, जालिम तो है नहीं। अब मसलन जो है मिसाल के तौर पे इसी मजमे में किसी को बहुत जोर से भूख लगी हो, भूख लगी है बहुत जोर से, हमें क्या मालूम, हमें नहीं मालूम, किसी को प्यास लगा है, बहुत जोर से प्यास लगी है, हमारे पास तो इल्म गैब है नहीं, हमें नहीं मालूम। अब लिहाजा जो है प्यास लगी है, हमें नहीं मालूम, बड़ी मजाक है। लेकिन अगर जो है हमें मालूम हो हमारे पास पानी हो अब फिर हम न दें, ये तो जाहिर सी बात है, सही नहीं है। तो परवरदिगार तो आलिम है, परवरदिगार को तो हर चीज मालूम है, हर चीज मालूम है, लेकिन जो है इसमें मसलहत है या जो है हमें मांगने का सलीका नहीं आता, हमें किस तरीके से परवरदिगार की बारगाह में सवाल करना चाहिए। भाई अबू हमजा सुमाती पढ़े आप किस तरीके से चौथे इमाम ने जो है जो बयान किया है तफसील से, तो हमें जो है मांगने का सलीका। अब सुनिए बहुत दकीक वाकया है नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, सलवात अच्छी पढ़िए। जनाबे मूसा जा रहे थे, नाजात करते, खतीब मौलाना शाहिद साहब की मौजूद है और दकीक मजलिस पढ़ते हैं, हम तो बस ऐसे पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए कि अच्छी मजलिस सुनाते हैं, आज ऐसी मजलिस भी सुनना ही पड़ेगा। तो बहरहाल मौला सलामत रखे। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कोहे तूर, तो रास्ते में एक शख्स मिला और उसने ये कहा कि जाइएगा और जाने के बाद जो है परवरदिगार से ये कह दीजिएगा कि हमारे पास नेमतें बहुत हैं, अल्लाह ने हमें बहुत नेमतें दी, लिहाजा जो है अब कह दीजिएगा अल्लाह से कि अब नेमत जो है दूसरों को दे, हमारे पास बेशुमार नेमतें हैं, अब जो है पढ़ दीजिए नेमतें जो है दूसरों को दे। दौलतमंद था और एक शख्स और था, कुछ नहीं है उसके पास, यहाँ तक कि रेत वगैरह से पता की। तो उसने कहा कि मूसा कहाँ जा रहे हैं? जनाब मूसा ने कहा अल्लाह से मुनाजात करने, कहा कि जाइएगा तो कह दीजिएगा कि अल्लाह जो हमें नेमतें दे, हमारी गुर्बत जो बहुत दकीक वाक़या, गौर से सुनिए, इधर उधर नहीं देखिएगा, बहुत दकीक वाक़या, इसमें ईमान में इजाफा हो जाएगा, अकीदे में बहुत ज़्यादा। तो अब जो है इसने कहा कि हमारे पास जो है कुछ भी नहीं है, कह दीजिएगा। मूसा गए, मुनाजात कर रहे, कुदरत की आवाज आई कि मूसा कुछ पैगाम भी है। जनाब मूसा ने कहा परवरदिगार पैगाम है। क्या क्या? कहा कि एक शख्स था, नौजवान था, उसके पास दौलत है, तमाम नेमतें हैं, और वो ये कह रहा है कि अपने परवरदिगार से कह दीजिएगा कि हमारे पास नेमतें हैं, अब जो है परवरदिगार दूसरों को नेमतें दे दे। कहा और पैगाम कहा एक शख्स है, उसने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, परवरदिगार से कह दीजिएगा कि हमें दौलत दे, हमें नेमतें दे। कुदरत की आवाज आई कि मूसा
جا کر اس سے کہہ دیجئے گا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس بہت نعمتیں ہیں اور جو ہے دوسروں کو دے دے، اس سے کہہ دیجئے گا کہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے۔ کیا بات ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اس سے کہہ دیجئے گا کہ تمہارے لیے زمین دے دیا، یہی کافی ہے۔ کیا بات ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ واہ، دو جواب۔ تو اب جو ہے قدرت کی آواز آئی، موسیٰ یہ جو غریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باپ کے پاس بہت دولت تھی، ہم مرتے وقت اس کے باپ نے کہا تھا بیٹا اب تمہیں جو ہے کسی کی محتاجی نہیں رہے گی، اتنی دولت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور یہ جس کے پاس جو ہے یہ جو مفلس تھا، یہ تھا اس کے پاس نعمتیں، اور اس کے باپ نے کہا بیٹا ہم جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے لیکن تمہیں خدا کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ واہ واہ واہ، صلوات پڑھیں محمد۔ معلوم ہوا کہ جو دولت کے حوالے کر کے جاتا ہے اپنے بچوں کو، دولت اس سے چھن جاتی ہے جو خدا کے حوالے کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دولت کے حوالے کر کے جائے گا تو دولت چھن جائے گی۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا دیتی ہے تمام چیز، دولت ہے، عہدہ ہے، چھن گیا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے دیا تھا تو دنیا نے اسے چھین لیا، اور جو خدا دیتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں چھینتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے در پہ آئے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور اس کے توسل سے اہل بیت معصومین علیہ السلام۔ لہذا جو ہے ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے خانقاہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، در علی پہ آئیں اور اس در پہ آئیں کہ مشکل میں خود رسول اسلام نے پکارا ناد علی رسول نے بلایا، مشکل میں جسے اپنی مشکلوں میں رسول نے پکارا ہے، آپ اس کے در پہ جائیے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا جو ہے خود انجامی معلوم نہ ہو، ہوں گے بڑے لیکن سند تو دکھائے۔ ارے صلوات پڑھیے محمد۔ وہ جو نجات خود نہ پا سکے تو وہ دوسرے کو نجات جو ہے وہ کیا دلائے گا؟ ارے علی بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک اور تقریب واقعہ سنا۔ جناب موسیٰ جا رہے تھے، ایک شخص تھا، اس نے کہا موسیٰ مفلس ہے، اللہ سے جا کے جو ہے ہمارا پیغام پہنچا دیجیے گا، جب بہت مفلس ہے، دولت مند ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے راجا کی، اب اس کے بعد جو ہے قدرت کی آواز ہے، پیغام کہا کیا پیغام؟ کہا ایک شخص کا پیغام ہے، بہت دقیق ہوا ہے، غور سے سنیے گا۔ کہا ایک شخص کا پیغام، کہا کیا پیغام ہے؟ کہا پروردگار، اس نے کہا کہ ہم جو ہے مفلس ہیں، مفلسی دور ہو جائے۔ تو قدرت کی آواز آئی، موسیٰ جائیے گا تو جا کر اس سے کہہ دیجئے گا کہ تقدیر قلم سے مفلسی لکھ گئی۔ غور کر رہے ہیں؟ تقدیر قلم سے جو ہے مفلسی لکھ گئی۔ اب یہ چلے جناب موسیٰ، اب جب چلے تو ظاہر سی بات ہے ایسا جواب تو تھا نہیں کہ کل دولت بند ہو جاؤ گے۔ جناب موسیٰ یہ سوچ رہے تھے کہ نہ ملے تو بہتر ہے، اچھا جواب تھا، جا رہے تھے، اس نے دیکھ لیا، اور دقیق بات ہے، غور سے سنیے گا، دیکھ لیا، روکا، کہا موسیٰ پیغام پہنچایا؟ کہا کیا جواب ملا؟ کہا کہ قدرت نے یہ کہا ہے کہ تقدیر قلم سے مفلسی لکھ دی گئی۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کو دیکھا، کہا موسیٰ یہ بتائیے کہ قلم جو ہے اس کے اشارے پہ چل رہا ہے یا اس کے اشارے پہ قلم چل رہا ہے؟ اگر جو ہے وہ قلم کے اشارے پہ چل رہا ہے تو پھر ہم ایسے کو خدا نہیں مانتے، اگر اس کے اشارے پہ قلم چل رہا
मुफलिसी लिख सकता है वही दौलत पर मांगने का और मनवाने का भी तरीका होना चाहिए। क्या बात है। अब जब जनाबे मूसा गए, सुनिए बहुत दकीक बात, अब जब जनाबे मूसा गए 2 दिन के बाद या दूसरे दिन गए, अब उसके बाद जो है कुदरत ने सवाल किया मूसा, उसने क्या कहा? जनाबे मूसा ने पूरा वाकया बयान कर दिया। कुदरत की आवाज आई उसकी अदा पे हम कुर्बान हो जाएं, किस तरीके से उलूहियत का इकरार किया। इस तरीके से है ना रुबूबियत का इजहार किया। तो अब आप देखिए कि मालूम ये हुआ कि तरीका होना चाहिए, यानी मांगने का सलीका होना चाहिए। और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया है, लिहाजा जो है हमारा नफ्स बातिन ये जो है ताहिर होना चाहिए और किस तरीके से हम परवरदिगार की बारगाह में सवाल करें। अब जाहिर सी बात है कि इंसान जो है, इंसान के दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, तो अब जाहिर सी बात है कि तहारत है, अगर कल्ब में सदाकत है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में दुआ कर रहा है, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ कर रहा है, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है उसकी दिल की तहारत को, उसके बातिन को, उसकी सदाकत को एक लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जब बगैर सवाल के अता करते हैं, क्या बात है। क्या बात है। बगैर सवाल के अता करते हैं। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर वाकया सुनते रहते हैं, ज्यादा नहीं सुने होंगे, ये भी मालूम। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम देखिए दिल का मुताबिक होता है, इमाम को जा रहे थे, क्या देखा कि एक गुलाम में चाहने वाला एक लुकमा खा रहा है, एक लुकमा जो है कुत्ते को देगा, एक लुकमा खा रहा है तो कुत्ते को दे रहा है। इमाम जो है उसके करीब गए और जाने के बाद इमाम ने कहा कि एक लुकमा दे देते, फिर उसके बाद खाते रहते। एक लुकमा दे देते, फिर खाते, एक लुकमा खा रहा है, एक लुकमा कुत्ते को दे रहा है, एक लुकमा खा रहा है, एक लुकमा कुत्ते को दे रहा। इमाम ने कहा एक लुकमा देकर खाते रहते। उसने कहा कि मौला ये अच्छा नहीं लगता कि हम जो है जानवर को फरेब दें, यानी शिया वही होता है जो हैवान को भी फरेब न दे। क्या बात है। सलात पढ़े मोहम्मद, वही शिया अहले बैत का चाहने वाला है ना कि हैवान को भी फरेब न दे। अब जब इमाम ने देखा, इमाम ने सवाल किया इस बाग का मालिक कौन है? वहाँ पे जो है वो पहरेदार था, कादिम था, वॉचमैन था, जो भी कह दिया। बाग का मालिक कौन है? बताया गया। इमाम ने उसे बुलाया, कीमत पूछी कितना, उसके बाद ये बताया कि पैसा लो और जो है ये बाग हमें दे दो। इमाम ने बाग ले लिया। बाग लेने के बाद अब इमाम ने कहा इस बाग को हमने खरीद लिया है, ये बाग हमारा है, अब जो है हम इस बाग को हिबा कर रहे हैं। ये बात हो गई। यानी जब ईमान दिल के सच्चाई को देख लेता है तो खुद जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है उसे अदा करते हैं। और घर पे आप जाइए, आज़मैन नजफ और जो है करबला है, तमाम मशहद मुक़द्दस जो है तमाम अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के बाद आप जो है जाइए और जाने के बाद जो है वो सवाल कीजिए, तो जो भी अहले बैत का मुहिब होगा। एक और पढ़ दीजिए सलवात अच्छी आ तो आप देखिए वो इंसान जो है कामयाब मंद रहता है, यहाँ भी है और उसके बाद तो वहाँ तो आखिरत तो कामयाब है। जवाना जन्नत के सरदार है। लेकिन एक मसला और भी है, बहुत से जो है ना दूसरे जनाब आदम जो है सबके बाप है, तो काबिल के भाई ये भी लिखते हैं कि तब ना पहुँच जाइएगा हाबिल की तरफ, जनाब हाबिल की तरफ। हाबिल को बोलो तो भाई सब समझ में लिखते हैं, अब समझ जाएंगे, आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा।
अब वो लिखते हैं कि ये जन्नत के हैं, तो सुनते रहते हैं ना सर। हाँ हाँ फिर ये जो है ना बूढ़ों के हैं सरदार है ना, बूढ़ों के सरदार, ये बूढ़ों के सरदार है फलाना है। तो मसला देखिए बहुत सादी सी बात है, हर बच्चा सोच सकता है कि जन्नत में होंगी हूरे, क्या बात इधर जो है हूरे होंगे, इधर जो है बूढ़े होंगे, तो फायदा क्या होगा इसी जन्नत से? आवाज़ बुलंद सलवार जहाँ हूरे हो और फिर जो है बूढ़े जाएंगे तो फायदा क्या? क्या बात है वाह बूढ़े जवान होकर जाएंगे, हूरे होंगे, एक सलवार पड़ेगी। तो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के दर पे, यानी वो अफराद क्या बात कि जो अहले बैत को नहीं मानते थे, जब आ जाते थे अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है उन्हें भी अता करते, सखावत तो सुनते ही रहते ना, हजारों वाक़े जनाब कंबर का भार डर के कूद गए, खतान भी न चला गए, हम भी न चले जाए। एक रोटी का सवाल किया था पूरा कतार और खुद मुंह से कूद गए कि सखावत का मसला ऐसा न हो कि हम भी चले जाए, सुनते रहते। लेकिन जो भी आया सवाल किया, बहुत दकीक वाक़या एक सुनाने जा रहे हैं, सुना देने सवाल थे, सवाल करते थे। तो एक मरतबा दिगाना साहब भी थे और रसूल इस्लाम जो है वो मौजूद है। एक साइल आया और आने के बाद जो है सवाल किया। दिगाना अफराद भी मौजूद है, कायनात के इमाम अली इब्न अबी तालिब जमीन आसमान का, मस्जिद का इमाम थोड़ी मालूम भी नहीं पीछे कितने अफराद खड़े हैं। क्या तो बात अब जाहिर सी बात है कि सवाल किया तो रसूल इस्लाम ने कहा, दिगर साहब थे, कहा कि दे दो, कोई नहीं उठा। फिर कहा कि ऐसा है कि अगर कोई एक नहीं दे सकता तो दो चार मिलकर दे दे, फिर कोई हरकत नहीं किया। कहा कि अगर दो चार नहीं तो सब मिल के है ना, जो भी हो 10-10 दिनार वगैरह मिलाकर दे दे, कोई हरकत नहीं किया, उठाई नहीं। अब जो है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए और जो है उस साहिल को दे दिया। अब जब साहिल को दे दिया तो जाहिर सी बात है सब बैठे हुए थे। अब एक दूसरे से कहने लगे कि देखो, जब भी कोई आता है सवाल करता है तो ये जो है फौरन जो है इनके पास जो है इतना पैसा आता कहाँ से? कोई नया मिजाज नहीं है आजकल भी जो पाया जाता है, पहले भी था। सलवार पढ़िए पहले भी तो सब कहने लगे कितना पैसा इनके पास है। एक ने कहा ये जो है मालूम होता है रात में चोरी करते और दिन में सखावत करते। कहा कि ऐसा करते हैं, दूसरे ने कहा ऐसा करते हैं, आज देखते हैं मगरिब के बाद जो है नमाज पढ़ने के बाद देखते हैं जाते कहाँ। तो वो जो है नमाज के बाद फौरन जो है छुप गया, साथ होता है तीन के साथ छुप गया कि देखे जाते मौला अली जा रहे तो उधर से गुजरे, फौरन सामने आएगा, कहा इधर कैसे? पहले वाला जहन पे रखिएगा, इधर उधर जहन ना जाए, काम वगैरह इधर उधर लगा सबका जहन चला जाता है। जाहिर सी बात है अगर इस वक्त किसी की हुकूमत है तो किसके मालूम होगा कि कोरोना की हुकूमत है, रहिएगा बहुत बड़ी बात। तो कहा बस ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप जो है इमाम के साथ चलो। इमाम ने कहा चलो। अब इमाम जो है लेकर कुछ दूर चले। इमाम ने कहा है एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें जो है बंद करता है। एक लम्हे के बाद कहा कि अपनी आंखें खोलो। अब जो आंखें खोलता है तो क्या देखता, अजीब मंजर है। और देख रहा है कि लोग जो है ना उताश्त लिए हुए, और जो है फल है, फ्रूट है, मेवा है, चौड़ा है, गरी है, सब बहुत तफसील से अपने ज़बान में हम बयान कर रहे हैं ना। तमाम जो हीरे हैं, जवाहरात हैं, हसीन और खूबसूरत नौजवान हैं, औरतें हैं, और जो है जानवर और सब जो है खुश हैं, और फल जो है इधर
अगर जो है आम तोड़ लीजिए 100 आम तो फौरन जो है 2 मिनट के बाद फिर 100 आम हाजिर हो गया। इस तरीके से फल है और शरीर और दूध का जो है नहर बह रहा है। बहुत खुश हैं लोग और इस्तकबाल कर रहे हैं, मौलाए कायनात का जिक्र कर रहे हैं। अब जो है ये देखा, ये मंजर देखने के बाद जो है उसने सवाल किया कि ये शहर कौन सा है? कहा ये शहर काफ है। ऐसा तो हजारों अभी शहर मौजूद है। और करते क्या? कहा सब खुश है, हम मौलाए कायनात का जिक्र करते हैं, विर्द करते हैं, इधर जो है बीज डालते हैं, इधर जो है फल निकलता है और कोई परेशान नहीं है। कहा कि सरदार कौन है? कहा सरदार हमारे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। उसके बाद जो है वो देखने लगा इस्तकबाल हो रहा है। मस्जिद में मौलाए कायनात गए और बेहतरीन सोफा लगा, दस्तरखान लगा, बेहतरीन जो है ना खाना है ना, क्या बात, खाना लगा हुआ है। सब जो है बैठे और ये भी बदतीनत, ये भी बदबक जो है ना बैठा है। और बैठने के बाद जो है हम खाए और सब जब खा चुके, अब थोड़ी देर के बाद देखता है, क्या देखता है? मौलाए कायनात नहीं। कहा कि कहाँ गए? माहौल उधर है। तो ये तो लग रहा है कि हमारे साथ जो है गड़बड़ हो गया, जो है होगा हो गया। कहाँ गए? तो अब जो है परेशान है। तो अब उसने सोचा आप क्या करें, किससे कहें, किससे सवाल करें। थोड़ा जो है बाहर निकला शहर से, तो क्या देखा कि खेत में लोग काम कर रहे हैं। ये शख्स था, तो उसने पूछा कि ये बताइए यहाँ से मक्का कितना दूर है? कहा 70 साल लग जाएगा मक्का। बहुत बुरे फंसे, 70 साल लग जाएगा। अब कहा कि अब ये तो मसला खराब हो गया, अगर जो है मालूम हो जाएगा तो भी मसला खराब है। हाँ अब क्या करें? तो एक शख्स ने कहा कि भाई कुछ दिन के लिए जीने खाने के लिए काम दे दो, ताकि जो है कुछ काम करें। कहा कि बस ये काम है, ये लो आज जो थे ये बीज डालते जाओ। अब जो है देख रहा है कि सब जो है बीज डाल रहे हैं, इधर से जो है दरख्त निकल रहा है, गंदम निकल रहा है, गेहूं निकल रहा है, फिर ले जा रहे हैं, उसको जमा कर रहे हैं, खलियान में छाट रहे हैं, बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं। और ये जो है बदबक जो है बीज को जमीन में डाल रहा, कुछ निकलता ही नहीं। अब लोगों ने भी देखा कि ये तो बड़ा बदबख्त मालूम हो रहा था। आखिर मसला क्या है? तो लोगों ने सवाल किया, कहा कि अब वो तो मसला हमें भी मालूम नहीं, तुम जो बीज डाल रहे हो फौरन जो है दरख्त निकल रहा है और हम डाल रहे हैं तो नहीं निकल रहा है। तो कहा ये बताओ कि मौलाए कायनात के दुश्मनों पे लानत भेज कर डालते हो। कहा कि ये तो नहीं करते। कहा मौलाए कायनात का जिक्र करो और जो उनके दुश्मन हैं उस पे लानत भेजो, लानत भेजो, तब जो है तरफ निकलेगा। अब देखिए बेबसी, लानत भेजता जा, अपने ऊपर लानत भेज रहा है। अब जो है अपने ऊपर लानत भी भेज रहा है, बीज भी डाल रहा है। अब जो बीज डाल रहा है कर रहा है, लानत उनके दुश्मनों पर अपने ही पे भेज रहा है। लानत हजारों मरतबा फंस गया बुरी तरह, लानत भेज रहा। अब जो है दरख्त निकले, परेशान हाल था ही। एक मरतबा क्या देखा कि अब लोग जो है बेहतरीन लिबास पहने हुए, बेहतरीन लिबास पहने हुए। बारह लाठी है ना, मसला था कि कोई जो है बेहतरीन लिबास पहने, कोई जो है मामूली लिबास पहने, उससे तो कोई मसला है नहीं है। मसलन जो है कोई 500 रुपया मीटर पहन रहा है, हो सकता है हम जो है 90 रुपया मीटर पहने, उसका मसला कोई। तो बहरहाल अब जो है देखा कि बड़ा खुश है, बेहतरीन लिबास और तमाम जो है इस्तकबाल के लिए आमादा है, दस्त है, फल है, फ्रूट है, खाना देने वाला। कहा कि अब क्या होने वाला है? कहा कि मौलाए कायनात आने वाले हैं। और हम जो है उनके इस्तकबाल के लिए आमादा है, इस्तकबाल के लिए आमादा है। हम भी वक्त के इमाम के लिए आमादा है। कितना आमादा है? अब तो ये जो आमादत इंतजार करे तो मालूम हुआ कि हर दौर में जो है लोग इंतजार कर रहे। और ये इतनी रकीब बात कह दी है। तो अब इधर से
इंतजार कर रहे हो, बोल बताया कि वो जो है हम आने वाले मौलाए कायनात वाले। अब जो है थोड़ी देर के बाद देखा, क्या देखता है, अब जो है दिरहम और दिनार तमाम चीज़ें जो है आता है, निछावर कर रहे हैं और नारा तकबीर और तमाम जो है आवाज़ें बुलंद है। और यहाँ तक कि मौलाए कायनात आए, नमाज पढ़ी और उसके बाद जो है सुफरा लगा हुआ था, सब जो है बैठ कर खाए। अब इसके बाद ये खौफजदा था और करीब आया, कहा कि आपके अखलाक का क्या करना, आपके कर्म का क्या करना, और हमें मालूम है और अगर इन्हें मालूम हो जाएगा कि हम आपके दुश्मन हैं, हम इस तरीके से हैं, ये काट डालेंगे, ये जो है हमें जो है टुकड़ा टुकड़ा करके जो है हमें फेंक देंगे, मालूम हो जाएगा कि ये जो है अली के दुश्मन है। कहा तो आपके कर्म का क्या करना है, इमाम को तो मालूम ही था मक्कार है यार है। इमाम ने कहा कि ठीक है, घबराओ नहीं। और उसके बाद जो है तमाम हीरे जो हालात थे, इमाम ने कहा जितना दिल चाहे जेब में भर लो। आ गई कि नहीं? ये जो है दुश्मन था। इमाम ने कहा कि जितना दिल चाहे भर लो। देखिए फिर भी हरकत से अब जेब में जो है भर लिया, जितना था समझ में आया ले लो, जितना दिल चाहे भर लो। अब उसके बाद परेशान था, इमाम ने कहा कि चलो। इमाम जो है मजदूर लेकर आए। उसके बाद कहा कि एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करो, और उसने अपनी आंखें बंद की। अब जो अपनी आंखें बंद की एक लम्हे के लिए, और उसके बाद इमाम ने कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोलो। अब जो है उसने अपनी आंखों को खोला तो क्या देखता है, जहां से गए थे वही है। इमाम ने कहा ऐसे ही चोरी करते हैं। पढ़िए तो जाहिर सी बात है कि इंसान को जो है वो सवाल करने का तरीका, हमारे ख्याल से बस है ना? नहीं पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ेगा, हो गया अच्छी रिपोर्ट कहाँ अच्छी सवाल मुख्तसर ये है कि आप देखिए कि जरूरी है तौहीद की मार्फत के लिए दो रास्ते, बैत के जरिए जाया जा सकता है, तो बैत की मार्फत के लिए तौहीद, वही इंसान जो है सआदतमंद है, और वही इंसान जो है वो कामयाब है कि जिसके दिल में है बैत मासूमी दुनिया से जाता है उसके पास वहाँ जिलाने मतलब अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारगाह में ये दुआ है परवरदिगार हम सबको जो है तौफीक दे, और हमें जो है हर रोज़ अपने यकीन और मार्फत, इल्म और अक़ीदे में जो है इजाफा करना। ये दुनिया जो है, ये दुनिया ऐसी है, गुजरने के लिए जो है कश्ती की ज़रूरत होती है, और वो कश्ती जो है वही मार्फत मोहब्बत इलाही, जो कश्ती पे सवार हो गया वो बखैर इस दुनिया से गुजर गया, और जो इस कश्ती पे सवार नहीं होगा तो फिर वो जो है डूब जाएगा। हाँ जिदान मोहतरम सबसे बड़ी सोचे कि ऐसे मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें और आप सैयदे सज्जाद से कहा, मेरे लाल सैयदे सज्जाद, जब खाने से छूट कर जाना तो मेरे शीरों को मेरा सलाम, और कहना कि जो ठंडा हज़ारों सैयदे सज्जाद के पास मदीने में एक शख्स आया, और आने के बाद उसने सवाल किया इमाम की बारगाह में, कहा कि मौला मैं गरीब, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
तो सैयद सज्जाद ने कहा कि गरीब नहीं, मौला गरीब है। तो इमाम ने सवाल किया, कहा अच्छा ये बताओ कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें कफन मिलेगा या नहीं? इतना भी गरीब नहीं है ना, कफन तो मिलेगा। इमाम ने कहा मेरा बाप गरीब था, इसे कफन मिलेगा। यही सैयद सज्जाद कि जब लुटा हुआ काफिला चला, बस आखिरी फिक्र है यही वाकया, बस मसाइल बस यही वाकया कि जब काफिला चला और कूफे से जब शाम की तरफ चला है तो यजीद ने और वो हुक्म दिया जल्दी सर को निकाल दिया जाए यहाँ से, वरना जो है सुलेमान सर खजाई वगैरह सर इमाम हुसैन को ले लेंगे। लिहाजा जो है ये शाम की तरफ रवाना हुए, बस आखिरी फिक्र शाम की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त था तो अब जो है क्या देखा, ये देखा कि कुछ दूर जो है चिराग रोशन है, ये कुली वगैरह जो है हुसैन पलट की नजर पे सर है काफिला जा रहा, कहा दूर जो है एक चिराग रोशन है देखा। तो जब करीब गए तो क्या देखा कि एक राहिब का देर था और वहां पे पहुंच गए। और जब वहां पे पहुंचे कहा कौन, कहा कि हुसैन ने खुरूज किया था, लिहाजा जो है कत्ल कर दिया गया और हम जो है रात को आए, हम ये चाहते हैं तुम्हारे दैर में पनाह ले। तो एक मरतबा उसने नजर दौड़ाई, क्या देखा कि एक शख्स सैयद सज्जाद, अब जो है गौर से देखा हाथों में हथकड़ी है, मासूम सा चेहरा है, कुछ ख्वातीन हैं, औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं और सर जो है नोके नैसा पे बुलंद है। एक जो है नजर दौड़ाई तो वो सिपाही कहने लगे कि हम ये चाहते हैं लश्कर यजीद कि हम जो है आज दैर में पनाह ले लें। जब उसने एक नजर देखा तो कहा कि ऐसा करो तो ये जो सर है जो नोके नैसा पे बुलंद है इसे जो है दायर में कर दो, ये औरतें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इन्हें अंदर कर दो और ये शख्स जो है इन्हें अंदर करके तुम सिपाही हो और जो है निगरान करो, दैर के इर्द गिर्द जो है निगरान करो। तो मंजूर कर लिया, कहा ठीक है। अब जो है तमाम सर को नोके नेज़र से लगाकर दीवार से लगाकर और सरे इमाम हुसैन कपड़े में लपेट कर संदूक पे रख के ताला लगा और तमाम बीबियां जो है वो एक तरफ है, सैयद सज्जाद है, बाकी सर जो है नोके नेज़र पे बुलंद है। ये राहिब सोच रहा है कि थोड़ी देर के बाद नींद लग गई, सो गया। अब जब सोया तो ख्वाब देखा कि अजीब जो है घर में नूरानियत है, एक अजीब जो है घर में रोशनी है। अभी सोच रहा था कि क्या देखता है कि आसमान से आवाज़ आई और आवाज आई राहिब अपनी जगह से खड़ा हो गया। राहिब कहता मैं नींद में था, घबरा गया, मैं अपनी जगह पे खड़ा हो गया। एक बार तो आवाज आई राहिब अपनी आंखें बंद कर अपनी जगह पे खड़ा रहना। क्या देखा, एक बीबी आई, लेकिन वो बीबी सिर्फ यही कह रही है हाय मेरा बेटा मजलूम, हाय मेरा बेटा हाय मेरा बेटा गरीब। कहा मैं चौंका, नींद से बेदार हुआ, मैंने शागिर्दों को बेदार किया। शागिर्दों से कहा तुम सो रहे हो, देखो कयामत आ गई। तमाम शागिर्द उठे, कहा मैं दौड़ता हुआ गया उस हुजरे में गया जिस हुजरे में संदूक रखा हुआ था और जिस संदूक में सरे इमाम हुसैन रखा हुआ था। ताला तोड़ा, सर को निकाला, का सर हाथ में लिया, गौर से देखा। हमने सर से कहा ये तो पहचाना हुआ सर मालूम हो रहा है, ये पहचाना हुआ सर मालूम हो रहा है। एक पटवा राहिब ने सर से कहा ऐसा बता कि तू है कौन। राहिब कहीं कटा हुआ सर बोलता है, हमें मालूम है कि कटा हुआ सर नहीं बोलता, लेकिन ये सर बोलेगा। ऐसा बताओ कि तू है कौन। कटे हुए सर से आवाज है अना गरीब, अना गरीब। जब ये आवाज आई तो राहिब बस आखिरी फिक्र, राहिब ने कहा जिद्दी और ज्यादा बता, और बता, हसन बता। कहा हसन बोलो सब जानना चाहते हो, मैं जो है मोहम्मद का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ, सलीका का बेटा हूँ। ये आजादारो बस इतना सुनना था। उसने कहा हुसैन इब्ने अली है। अब रोने लगा। जाहिर सी बात है राहिब क्यों नहीं रोता जब कटा हुआ सर बोल रहा था। राहिब रोने लगा और दौड़ता हुआ आया, सैयद सज्जाद के पास आया, हाथों को जोड़ा, कलमा पढ़ा, कहा मौला आप इजाजत दीजिए, हम जालिमों से बदला लेंगे। इमाम ने रोका, ए राहिब अभी ये वक्त नहीं आया, अजब नहीं शहजादी ज़ैनब आवाज दी होगी, ए मेरे भाई कयूर अब्बास देखो गैब को भी ज़ैनब
واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہے یہ جو بھی افراد جو نیت حاجات ہو اسے قبول فرما اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ میں اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ خطیب اہل بیت مولانا شاہد صاحب اللہ کی جو نیک حاجات ہو دلی حاجات اسے قبول فرما پروردگار جتنے بھی حاضرین و غائبین ہیں جو نیک حاجات و تمام آفات و بلیات و پریشانیوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما پروردگار اس گھر میں اپنی رحمت اور نعمتوں اور برکتوں کا نزول فرما تمام آفات و بلیات و پریشانیوں کو دور فرما پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دشمن جنیوں سے ہر شر سے محفوظ فرما پروردگار جو منافقین کے پوشیدہ ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو قطع فرما پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما جگہ العلین عنایت فرما کریم جو کاروبار اور روزگار کر رہے ہیں ان کے کاروبار اور روزگار میں اور ترقی عنایت فرما پروردگار ہم سب کو حلال رزق عنایت فرما پروردگار حضرت کے ظہور میں تحجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع